Because that we do. Hallelujah, Jesus. Jesus. Uh, should we pray? Gracious, loving Heavenly Father, wonder-working God, we come to Thy presence to worship Thee and praise Thee, Lord. We thank You for bringing us this evening hour at Thy feet to gather in Thy name, name above all names, name which has been uh, glorious and holy because of what it has achieved. Thank You for this name came down from heaven above, leaving all its glory into Lord, mankind, and offered itself up on the cross of Calvary, Lord. Thank You, Jesus, for You became the propitiation for our sins. Thank You for You became, Lord, sin for us, died on the cross of Calvary, swallowing up our penalty on the cross of Calvary. We're buried and You rose up again, now seated on the right hand of the Father, interceding for us as the high priest forever, a high priest of the order of Melchizedek, a high priest set apart for us in heavens, saving us even until the utmost. We thank You and we worship You for this great and mighty work that You continue to do, seated on the right hand of the Father. Now, Lord, as we come to Thy presence this evening hour, we bring ourselves in the efficacy of Thy precious blood. We seek Thy mercy, we seek Thy cleansing, and we pray that You will visit us in a fresh and new manner, that You will anoint Thy servant, hide him behind the cross, and You will speak to us, cleanse us by Your word, and prepare us for a time of prayer. And Lord, that You will also unite our spirits together as we pray, that we might be able to pray that which is in Thy heart. Lord, because You are interceding, we have to, like last Wednesday, we were reminded that unless until we pray, You will not have anything to put it in Father's presence, so that we might know with fear and trembling that we are also making an intercessory role, and that which we utter in Thy presence might be with great fear and trembling. Our prayers might be acceptable unto Thee. Grant us this grace. Touch our lips, prepare our hearts with Thy word, prepare our time with singing, and beginning till end, the technology might be under Your unction and admonition. We might experience an open heaven, and we might be able to pray for those things which are laid in Your heart. There is so much need in the world around, Lord. There is wars, rumors of wars. There is economic crisis. There is terribleness going all around. And above all, men are perishing, Lord. Many are going into eternal perdition, and we ought to pray for them. So lay it upon our hearts, Lord. Even in the house of God, we need to strengthen one another, as an iron sharpeneth iron, and as Lord, people strengthening one another for Thy coming. We might be able to pray with earnestness. Lead us. Grant us Thy word as we ask and pray in Jesus' precious name. Amen. आमीन। आइए हम लोग सॉन्ग स्तुति गाएंगे हिंदी में। 720 इन हिंदी। तेलुगु में गाना यहाँ पर नहीं दिया है, हिंदी में कर दिया है। 720 नंबर गाना।
प्रार्थना में जाने से पहले एक यिर्मयाह नबी की किताब उसका यिर्मयाह नबी की किताब एक भाग को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेरेमिया चैप्टर 32 अध्याय 32 चैप्टर वर्स 27। द बुक ऑफ जेरेमिया उसका 32 अध्याय उसका 27 वर्ष। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? प्रभु इस पढ़े वचन को आशीष करें और हम सबों के लिए परमेश्वर का वचन के द्वारा प्रार्थना करने के लिए हमको प्रोत्साहन दे। थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे प्रभु की सहायता के लिए। हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, एक बार फिर आपके चरण में आते हैं। इस मंडली की प्रार्थना के नाम प्रभु हमें अपने में इकट्ठा होने में सहायता किया। प्रभु जी, प्रार्थना में जाने से पहले जो भजन के भाग को हमने पढ़ा है, हमारे सबों के लिए आशीष करें प्रभु जी, और हमें वचन के द्वारा प्रोत्साहन दे प्रार्थना में जाने से पहले, ताकि हम आत्मा के साथ में, बुद्धि के साथ में एक मन होते हुए थोड़ा समय क्यों न हो प्रभु जी, आपका डर भय के साथ में प्रार्थना से बिताने के लिए आपकी सहायता को चाहते हुए, मैं तुझ को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए बोलने के लिए अनुग्रह अगुवाई को चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनने और ग्रहण कीजिए, आमीन। यहाँ पर यिर्मयाह नबी की प्रार्थना को यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह यिर्मयाह प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर यिर्मयाह के जीवन के बारे में अगर हम देखेंगे तो कुछ खास बातें हम लोग पाते हैं यिर्मयाह के जीवन के अंदर। और यिर्मयाह एक प्रार्थना करने वाला नबी था जो इजरायलियों के पक्ष में और इजरायलियों की दुर्दशा के लिए हमेशा यिर्मयाह ने प्रार्थना करता रहा। इस बात को हम लोग जानते हैं। यिर्मयाह नबी एक बहुत ही छोटे से उम्र में ही परमेश्वर ने उसको बुलाया था अपनी सेवा करने के लिए। और यिर्मयाह की कुछ बातें को हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम उसको देखेंगे तो यिर्मयाह एक याजक के परिवार में था वो, और बहुत ही कम उम्र में ही परमेश्वर ने उसको अपनी सेवा के लिए बुलाया था। और यिर्मयाह नबी ऐसे समय में परमेश्वर के लोग जो इजरायली प्रजा थे वो कई साधारण सा प्रजा नहीं थे वो, क्योंकि वो राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु का, सेनाओं का यह परमेश्वर की प्रजा इजराइल, उस समय के इजराइल में उनके बीच में उनको या प्रोफेसी करना हुआ या उनको चेतावनी देना हुआ, ये बहुत ही खास, ये बहुत ही एक भारी एक सेवकाई था यिर्मयाह के लिए, क्योंकि वो उम्र भी छोटा था, उनका उम्र भी छोटा था। और दूसरी बात हम यहाँ पर पाते हैं कि वो यिर्मयाह बहुत ही डरने वाला व्यक्ति था, वो एक डरपोक व्यक्ति था वो। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने इतना बड़ा सेवकाई को उनके कंधे पर प्रभु ने डाल दिया था। क्योंकि अगर हम उस वचन को पढ़ेंगे यिर्मयाह के नबी की किताब के अंदर, यिर्मयाह लेवी खानदान के होने के द्वारा, लेवी खानदान से आने के द्वारा वो ये सोचता था होगा कि शायद मैं भी लेवी का काम करूंगा या प्रभु के भवन में रह के अंदर, प्रभु के भवन के अंदर मैं काम करूंगा, इस प्रकार का सपना शायद वो दिखता था होगा वो। लेकिन परमेश्वर का विचार उसके पक्ष में कोई दूसरा ही था, और परमेश्वर उसको बुला लिया उसकी सेवा करने के लिए। और परमेश्वर ने उसके जीवन में एक न्याय का एक बोलता ना, एक न्याय का संदेश को लेके, या तो एक चेतावनी के संदेश को लेके उसको जाने वाला एक भविष्यवक्ता उनको बनाया उनको। तो यहाँ पर वचन का 32 अध्याय के अंदर यहाँ पर यिर्मयाह नबी प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना कर समय परमेश्वर उनको कहता है कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? तो यहाँ पर यिर्मयाह नबी यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करने के लिए जब यहाँ पर आता है 32 अध्याय का 16 वचन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, 32 का 17 में पढ़ते हैं।
हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा के से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। यहाँ पर यिर्मयाह नबी प्रार्थना करते समय परमेश्वर को और प्रभु की बड़ाई करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की गुणगान करते हुए, प्रभु की ऊंचाईता को, महानता को वहां पर दर्शाता है। वो कहता है कि हे प्रभु, तेरे तुल्य और कोई परमेश्वर नहीं है और तेरे जैसा सामर्थ्य और किसी का नहीं है। वो यहाँ पर कहता है कि तूने अपनी बढ़ाई हुई भुजा से आकाश को, पृथ्वी को बनाया है और तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। वचन 18 में कहता है, तू हजारों पर करुणा करता रहता है, परंतु पूर्वजों की अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश को, लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। तो यहाँ पर यिर्मयाह नबी प्रार्थना करते समय परमेश्वर के गुणगान, परमेश्वर की आराधना यहाँ पर करता है यहाँ पर। लेकिन जब प्रभु ने उसको बताया कि हमने जो पढ़ा के भाग को 32 अध्याय का 17 में, वहां पर हमने पढ़ा कि 27 में, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हम और आप भी उस परमेश्वर के चरण में, उस परमेश्वर के सिंहासन के निकट हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं। जिस परमेश्वर के सामने कोई बात कठिन और कोई बात असंभव नहीं है। ये बात हमको विश्वास करना है। हम और आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु है, सारी सृष्टि को बनाया है, उस महान परमेश्वर के चरण पे प्रार्थना करने के लिए, मांगने के लिए आज हम एक मंडली के रूप में हम लोग यहाँ पर प्रभु के चरण में आए हुए हैं। इसीलिए आज हम प्रभु के चरण पे आने से पहले, मांगने से पहले, हमारे और आपके जीवन को जांचना, हमारे आपके जीवन को ठीक ठाक करना, हमारे आपके जीवन को प्रभु के क्रम के अनुसार को लाना बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ पर यिर्मयाह नबी एक बात कहता है, यहाँ पर वो कहता है कि क्या कहते हैं, देखिए मतलब 19 में, 32 का 19 में, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है, तेरी दृष्टि मनुष्य के सारी चाल चलन पर लगी रहती है। पहली बात, हम और आपको इस बात को जानना है, गंभीरता से लेना है। जिस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने मांगने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम मंडली के नए आए हुए हैं, वो हमारा परमेश्वर यहोवा, हमारा प्रभु, हमारे चाल चलन को, हमारे व्यवहार को बड़ी गौरता से, बड़ी एक गंभीरता से हमारे चाल चलन को देखता है। आज हम प्रभु के सामने मांगने के लिए आए हैं। हमारा जीवन, हमारा चाल चलन या हमारा कैरेक्टर क्या प्रभु की दृष्टि में, मैं बड़ी हियाव के साथ में क्या प्रभु के सामने आ सकता हूं? मैं जिस परमेश्वर के सामने आने के लिए मूसा कहता है कि मैं थरथराता हूं, मैं डरता हूं, मैं, और उस महान प्रभु के सामने हम लोग आए हुए हैं। यद्यपि हम जूम में हैं, हम अपने अपने घर में हैं, लेकिन एक बात को हमको जानना है प्रियो, कि हम और आप उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने ऐसे ही कैजुअली, ऐसा ही हम लोग उड़ के एक लापरवाही के साथ में या एक तैयारी ना करते हुए हम प्रभु के सामने नहीं आ सकते हैं। हमारे आप के लिए ये बहुत ही गंभीर बात है प्रियो, कि हम और आप, हमारे परमेश्वर का डर और भय हमारे जीवन के अंदर नहीं है। इसीलिए आज हम पूरा हफ्ता का जीवन मैं कैसे बिताता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर यिर्मयाह कहता है कि तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चाल चलन का, कर्म का फल तू भुगताता है। उस परमेश्वर के सामने आने से पहले हमारा प्रभु के सामने हमारे जीवन को जांचना है। जो परमेश्वर भस्म करने वाला अग्नि भी हमारा परमेश्वर है। वो प्रभु के सामने आने के लिए इस बात को हमको भली भांति जानना है कि नहीं, आज मैं प्रार्थना करने से पहले मेरे जीवन को जांचना है। मेरा जीवन कैसा है, पूरा हफ्ता मैंने कैसे जीवन बिताया मैंने,
मेरा चाल चलन कैसा है। क्योंकि अगर हम नीचे पढ़ेंगे यहाँ पर उसी का 32 अध्याय का वचन 23 में पढ़ेंगे यहाँ पर 32 चैप्टर वर्स 23 में तो भी उन्होंने तेरी नहीं मानी और न तेरी व्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ तूने उसको करने की आज्ञा दी उनमें से कुछ भी नहीं किया। देखिए यिर्मयाह नबी इस्राएल के विरोध में एक चेतावनी देता है। चेतावनी क्या है कि जो भी आज्ञाएं परमेश्वर यहोवा ने तुम लोगों को दिया था, उन आज्ञाओं को, उन व्यवस्थाओं के ऊपर क्या बोलते हैं कि उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या आज हमारा जीवन ऐसा है? क्या हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं? क्या प्रभु का डर और भय हमारे जीवन के अंदर है? क्या प्रभु की इच्छा के अनुसार को मैं जीवन बिताता हूं? क्या मैं वो काम कर रहा हूं जो काम प्रभु की दृष्टि में ठीक है? अगर नहीं तो जो चेतावनी यिर्मयाह नबी की तरह इस्राएलियों को दे रहा है प्रियो, वो चेतावनी हमारे लिए भी है। आज हम और आप इतने हल्के में लेते हैं प्रभु के वचन को या हमारे जीवन को, हम बहुत ही लापरवाही के जो हम जीते हैं आजकल हम लोग प्रियो। आज जिस परमेश्वर को जिस ऊंचाईता में हमको आदर करना है, उनको प्रेम करना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है या उनकी इच्छाओं को पूरा करना है, उसमें हम लोग विफल हो चुके हैं आज। इसीलिए हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है, इसलिए हमारी पुकार प्रभु के सामने नहीं पहुंचता है। क्योंकि यिर्मयाह नबी कहता है इस्राएल के बारे में, तुम लोगों ने प्रभु की ओर से दिया हुआ व्यवस्था पर चलने के लिए, वो कहता है कि जो आज्ञा तुमको दिया गया था, जो व्यवस्था दिया गया था, उनमें से तुमने कुछ भी नहीं किया। हमारे बारे में क्या है आज? क्या मेरे बारे में आज यही प्रकार चेतावनी है? मेरे बारे में क्या है आज? ये मेरे आज व्यक्तिगत जो हमारे किसी को जीवन को जांचने का अधिकार नहीं है। आज प्रभु की वचन के प्रकाश में मुझे जांचना है, क्या जो प्रभु ने आज्ञा दिया था उस आज्ञा को मैं पूरा कर रहा हूँ? जो व्यवस्था प्रभु के जो नियम को चलना उसमें चल रहा हूं मैं? या आज मेरे लिए भी है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनके जो भी कुछ भी नहीं किया। अगर ऐसा हमारा जीवन है, मेरा जीवन है, हमारा जीवन है, तो हमारे प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। यहाँ पर और एक बात कहता है यिर्मयाह नबी की किताब, यहाँ पर और एक बात कहता है, देखिए वचन उसी का हम पढ़ेंगे वचन 35 में 32 चैप्टर वर्स 35 में, उन्होंने हिंदू मियों की तराई में बाल के ऊंचे ऊंचे स्थान पर बनाकर अपने बेटे अपनी बेटियों को मोलेक के नाम होम किया, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और न यह बात कभी मेरे मन में आई, neither came it into my mind। प्रभु का दास प्रभु के परमेश्वर का अपनी बात यहाँ पर रखता है। वो कहता है कि वो neither came it into my mind, ऐसे बात मेरे कभी मन में भी नहीं आया, वैसा काम तुम लोग कर रहे हो। इजरायलियों को यिर्मयाह नबी के द्वारा यहाँ पर चेताता है, यहाँ पर वार्निंग देता है, उनको सावधानी बताता है कि अरे जो परमेश्वर के मन के अंदर भी वो बात नहीं आई है, वो बात तुम लोग कर रहे हो। हमारे विषय में क्या कभी कभी इस बात को मैं वचन आज में दोपहर में पढ़ रहा था, मेरे को एकदम शौक हो गया कभी, अरे वो परमेश्वर के वचन कहता है कि जो बात प्रभु के मन के अंदर भी नहीं आया है, वो बात इस्राएलियों ने किया। पाप किया इस्राएलियों ने, पाप किया। हमारे आपके बारे में क्या है प्रियो? आज हम प्रभु के सामने मांगने के लिए आए हैं। ये हमारे लिए चेतावनी है। क्या हमने भी ऐसा कोई पाप किया है? क्या हमने भी ऐसा कोई अनुचित काम हमने किया है? क्या हमने भी ऐसा कोई ऐसी बातें की है क्या जो प्रभु के मन में भी नहीं आई? वो बातें कितनी गंभीर बात है ये। मैं आज बच्चा पढ़ा, मेरे को एकदम ही आई वाज शॉक। अरे जो बात प्रभु के दिमाग में नहीं आया, वो पाप उन्होंने किया। वो आगे कहता है, देखिए ऐसा घृणित काम किया जाए कि जिसमें यहूदी लोग पाप में फंसे गए। हमारा जीवन को जांचना कितना अनिवार्य है। आज हम प्रियो अंतिम समय में हम जो बिता रहे हम लोग आज
संसार की हालत को, संसार की अवस्था को हम जानते हैं, बहुत ही गंभीर है। हमारे लिए चेतावनी है आज, हमारे लिए आराम है, ये हमारे लिए आज ये संसार की हालत। अगर आज हम और आप भी इसी प्रकार का जीवन बिताते हैं तो हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। यहाँ पर दो बातें कहता है। पहली बात कहता है कि परमेश्वर हमारा आपके चाल चलन को देखता है। प्रियो, मेरा जीवन कैसा है, हम प्रभु के साथ मांगने के लिए आए हुए हैं। इस बात को हमको गौर करना है कि हे प्रभु, मेरे जीवन को तू जांचता है, मेरा जीवन कैसा है, मेरी चाल चलन कैसा है प्रभु के सामने। भले मैं लोगों के सामने या विश्वासियों के सामने या मंडली में आते समय ठीक ठाक मैं जीवन दिखाता हूँगा भाई, वो कपटी का जीवन है, वो दिखावटी जीवन है वो। लेकिन हमारा प्रभु मेरा मन को जांचता है। तो मैं जब परमेश्वर के तौल में, परमेश्वर के माप में जब मैं आता हूँ, मैं कैसा निकलता हूँ, हल्का निकालता हूँ या मैं बैलेंस में आता हूँ। मैं हमारा परमेश्वर हमारी चाल चलन को जांचता है। दूसरी बात, परमेश्वर का जो आज्ञा है हमको दिया हुआ है, जो वचन को हमको पालन करना है, क्या उसमें से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं? क्योंकि परमेश्वर कहता है यहाँ पर यहूदी लोगों को यिर्मयाह के द्वारा, जो भी आज्ञा मैंने तुमको दिया है तुमने कुछ भी नहीं किया। तुमने हमारे बारे में क्या है? और तीसरा गंभीर बात है कि इजरायलियों ने, यहूदी लोगों ने वो किया जो प्रभु के मन में भी नहीं कभी बताया। वो ऐसा काम करके वो लोग पाप में फंस गए। हमारा आपके बारे में क्या है? क्या ऐसे काम मैं कर रहा हूं? ऐसा सोच मेरे अंदर है, ऐसा चरित्र मेरे अंदर है प्रियो, जो प्रभु ने सोचा भी नहीं होगा? कितनी गंभीर बात है। अगर ऐसा हमारा जीवन है तो हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। मैं 7 बातें बताऊंगा, मैं आपको जल्दी से, मैं हिंदी में पढ़ूंगा 7 बातें। देयर आर 7 रीजन देयर हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। वैसा 7 कारण है जो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। मैं फटाफट पढ़ता हूँ हिंदी में, फिर हम प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। पहला बात, उसको हम पढ़ते हैं। भाई मालिका, तो पहली बात हम देखते हैं याकूब की किताब 1 अध्याय 6 और 7, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 6 और 7 में। वहां पर हम कहता है कि वचन के कहता है कि अगर हमारा अनबिलीफ, अविश्वास है या शंका है, हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। हम प्रार्थना करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। यदि मेरे अंदर अनबिलीफ है, अविश्वास है या शंका है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। पहली बात। दूसरी बात, भजन संहिता 68 वर्स 18, भजन संहिता की किताब उसका 68 अध्याय 18 वचन, अगर मेरे मन के अंदर कोई अनर्थ की बात है, इनिक्विटी इन माय हार्ट, अगर मेरे मन के अंदर कोई इनिक्विटी है, कोई अनर्थ की बात है एक दूसरे के प्रति, हमारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। तीसरा, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 3, जेम्स याकूब की किताब 4 अध्याय वचन 3, यदि हम अनुचित रीति से हम मांगते हैं, हिंदी में लिखा है अनुचित, इंग्लिश में लिखा है अमिस। अगर हमारा प्रार्थना, हमारा विनती, हमारा पुकार में कहीं अनुचित है या अमिस है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। ये होगा तीसरा बात। चौथा बात, मार्क, बुक ऑफ मार्क 11 चैप्टर 25 वर्स, मार्कुस की किताब उसका 11 अध्याय वचन 25, वहां पर लिखा हुआ है, ऑन हमारे हृदय, हमारे जीवन में अगर क्षमा करने वाली आत्मा अगर नहीं है, मैं बंदी पढ़ता हूं इसको सब समझने के लिए। बुक ऑफ मार्क की किताब उसका 11 अध्याय वचन 25, ये हमारे लिए कितना आज जरूरी है। यहाँ पर कहता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, नहीं तो हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। अगर मेरे अंदर
क्षमा करने वाला आत्मा अगर नहीं है प्रियो, ये आज हमारे लिए बड़ा चेतावनी है। हम कितना भी रोएंगे, कितना भी चिल्लाएंगे, कितना भी हम फूट फूट कर रोएंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन मेरे अंदर ऐसी आत्मा है जो मैं क्षमा नहीं कर पाता हूं मैं भाई बहनों को, तो हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। ये हमारे लिए चेतावनी है ना। अनफॉरगिविंग स्पिरिट है ना, हमारे लिए, हमको आपको प्रभु ने क्षमा किया है बिना शर्त, बिना कंडीशन को क्षमा किया प्रभु ने, हमें भी क्षमा करना है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ वचन के अंदर, अगर तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई विरोध हो, प्रियो, क्या मेरे हृदय में, मेरे मन के अंदर किसी के प्रति कोई विरोध है क्या? मैं जलन है क्या? डहा है क्या? ईर्ष्या है क्या? मतभेद है क्या? फूट है क्या? हम कैसे प्रार्थना कर सकते प्रभु के सामने आके? इसीलिए आज हमारे आत्मिक जीवन का अवस्था अत्यंत दयनीय क्यों है? क्योंकि आज हमारे जीवन में क्षमा करने का आत्मा हमारे अंदर नहीं है। क्षमा करते भी हैं तो उस ऊपरी तौर पर क्षमा करते हैं, लेकिन अंदर तक कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो बात है। और ऐसे आत्मा के द्वारा अगर हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। पांचवा पांचवा उसको हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब, नीति वचन की किताब 21 अध्याय वचन 13, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, सामयिक लोग उसका 21 अध्याय वचन 13, 21 चैप्टर वर्स 13। जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। ये एक सुलेमान का वचन में यहाँ पर कहता है कि जो कंगाल पर कान न दे वो आप पुकारेगा, उसकी सुनी न जाएगी। यदि हम और आप हमारे अड़ोस पड़ोस के अंदर जो जरूरतमंद है, जो आत्मिकी तौर पर उसका, उनकी कोई उनको पुकार को हम लोग नहीं सुनते हैं, उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, प्रियो, ये आत्मिक की अवस्था को दिखाता है यहाँ पर कि यदि कोई ऐसी अवस्था के अंदर है, उनकी पुकार को नहीं सुनते हैं, उनके जीवन को हमारे कोई उनकी उनके उनकी हम लोग नहीं सुनते, नहीं देखते, विचार नहीं करते हैं, फिर भी हम प्रार्थना करते प्रभु के सामने आके, हमारी प्रार्थना हमारा प्रभु नहीं सुनता है। कंगाल की दुहाई पर कान न दे। आत्मिक की स्थिति आज हमारे जीवन में हमको देखना है, कितनी ऐसे परिस्थितियां हैं, आत्मिक परिस्थितियां हैं जो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही गंभीर है, फिर भी उसको हम लोग नहीं चिताते, उनको हम लोग, या उनको हम लोग नहीं सुधारते हैं, या उनको हम लोग नहीं समझाते हैं, नहीं बोलते हैं, या उनको हम लोग उनके हेल्प नहीं करते हैं, उनको सहायता नहीं करते हैं। उन सब बातों को हम लोग इग्नोर करते हुए फिर भी हम प्रभु के चरण पे आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वचन कहता है कि हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। पांचवा हो गया। छठवा, सिक्सली बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की किताब 28 अध्याय, नीति वचन 28 चैप्टर 28 वर्स 9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। ये छठवां कारण है। अगर हम प्रभु की व्यवस्था को नहीं मानते हैं, आज्ञा को नहीं मानते, पालन नहीं करते, हमने पढ़ा यिर्मयाह की किताब के अंदर यहूदी लोग वो काम कर रहे थे जो प्रभु के मन में भी कभी नहीं आया, ऐसे पाप करके वो पापी हो गए, पाप में फंस गए थे वो लोग। यदि आज हमारा जीवन में ऐसा ही है तो हम लोग दिखावटी को जीवन को लेके हम लोग प्रभु के डर भय के बिना प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, यहूदी की तरह हम लोग उसमें से कुछ भी अपने नहीं किया है, तो हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। और सातवां और अंतिम क्यों हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है, द बुक ऑफ आइजिया 58 चैप्टर, यशायाह नबी की किताब उसका 58 अध्याय 58 चैप्टर वर्स 5, 50 वर्स 4। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते
और झगड़ते, दुष्टता से गुस्सा मारते हो, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। ये 7वां, यहाँ पर अगर हमारे आपस में हम लड़ाई करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, आपस में हम लोग गट गट हमारे जो मेलजोल नहीं है, तो फिर भी हम प्रार्थना करते हैं आके, तो वचन कहता है कि हमारी प्रार्थना, तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। प्रियो, आज हम और आप बहुत ही वचन के प्रकार में जांचना है प्रियो कि आज हमारे बीच में आपस में झगड़ा है, आपस में मतभेद है, पति पत्नी के अंदर मतभेद है, परिवार के अंदर मतभेद है, लड़ाई झगड़ा है, फिर भी हम मंडली में आते हैं। हम लोग मंडली में आते हैं, आराधना करते हैं, में से भाग लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वास्तविकता में जीवन क्या है? आपस में हम लोग मिलते नहीं है, आपस में लड़ाई करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की बातों को दूसरे को लोग हम कहते रहते हैं। हमारी प्रार्थना, हम जितना भी रोएंगे चिल्लाएंगे, हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। ये एक वचन जो प्रेरित पौलुस का लिखा हुआ वचन है, मैं बहुत ही अच्छा वचन को पढ़ने का मेरे को उसको पढ़ेंगे। क्यों आज हमारे आपस में बनता नहीं है? हमारे आपस में झगड़ा क्यों हुए? परिवार में झगड़ा क्यों हुए? परिवार में आज समस्या क्यों हुए? अनमेल क्यों हुए? कारण क्या है? पौलुस कहता है यहाँ पर, देखिए प्रेरित पौलुस कहता है, पहला कोरिन्थियों की किताब 1 कोरिन्थियन उसका 6 अध्याय, द बुक ऑफ 1 कोरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 7-8 मैं पढ़ता हूँ हिंदी में। परंतु सचमुच तुम्हें बड़ा दोष यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते हो, अपनी हानि क्यों नहीं सहते? पौलुस कुरिन्थियों की मंडली को कहता है, तुम लोग आपस में लड़ने की बजाय, झगड़ा करने के बजाय, तुम लोग अन्याय को क्यों नहीं सहते हो, अपने हानि को क्यों नहीं सहते हो? आज हमारे बीच में सबसे बड़ी झगड़ा का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि हम अन्याय को सहना नहीं चाहते हैं, हम अपने हानि को नहीं चाहते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना शून्य किया, अपने आप को इतना दीन किया हमारे पापों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने शून्य बनते हुए, अपने आप को शून्य करते हुए, दीन करते हुए, खाली करते हुए उस कलवरी के क्रूस की मृत्यु को अपना लिया। लेकिन आज हम और आप, हमारे मंडली के आपस के अंदर इसलिए झगड़ा होता है, इसलिए अनमेल होता है परिवार के अंदर, क्योंकि हम अन्याय को सहना नहीं चाहते हैं, हम अपने हानि नहीं चाहते। लेकिन प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अन्याय को सहा, हमारे लिए अपने हानि को प्रभु उठाया, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। तो हमारे जीवन में भी प्रभु हमको ये चाहता है कि हम भी अपने अन्याय को सहते हुए, हानि को उठाते हुए, हम अगर ऐसा काम करेंगे तो हमारे बीच में आपस में एकता बन रहेगी। इसलिए ये 7 बातें हैं जो हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है, इसलिए प्रभु हमको सहायता करे। मगर जब हम हमारे जीवन को ठीक ठाक करते प्रभु के पास में हम आएंगे, प्रभु क्या कहता है कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। यदि हम एक मन होते हुए 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं, एक मन के मेरे साथ मेरे पास में आते हैं 2 या 3, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा हमारे लिए है कि मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है ना। एक बस पढ़ के हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु कहता है कि मैं तो सब प्राणियों का यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? कोई काम कठिन नहीं है हमारे प्रभु के लिए, बरसते हमको क्या करना है? एक मन होते हुए, है ना, आपस में एकता के साथ में, ऐसा आरंभ के मंडली था, ऐसा ही हम एक मन होते हुए हम प्रभु के पास में आते हैं, तो हमारा प्रभु के सामने कोई कठिन नहीं है। क्योंकि अय्यूब कहता है, देखिए उसको पढ़ के हम लोग प्रार्थना प्रवेश करेंगे। द बुक ऑफ जॉब, अय्यूब की किताब उसका 42 अध्याय, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 42 वर्स 2।
42 मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरे युक्तियों में कोई नहीं रुक सकती है। अयुब कहता है कि मैं जानता हूं परमेश्वर यहोवा प्रभु तो सब कुछ कर सकता है। हमारा प्रभु हमारे लिए भी सब कुछ कर सकता है प्रिय भाई, इसलिए हमको प्रभु सहायता करें। तो आइए हमारे जीवन को जांचते हुए, परखते हुए, है ना, इन 7 बातों में हम लोग कहीं चुके हुए हैं। मैं चुका हूँ प्रियो, हम चुके हुए, उस बात को कबूल करते हुए, अपने जीवन को ठीक ठाक करते हुए हम प्रभु के सामने आएंगे, एक मन होकर प्रभु के सामने आएंगे, प्रार्थना करेंगे और वो प्रभु कहता है कि मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु हमको सहायता करें। आइए हम लोग इस वचन के हम प्रभु हम सब कोशिश करें। भाई गाब्रियल। ये वचन के प्रकाश में हमारे जीवनों को परखेंगे। अगर कोई बात ऐसा है जो प्रभु को दुखित करता है, प्रभु को पसंद नहीं है, या फिर हमारे प्रार्थनाओं को प्रभु की उपस्थिति में आने से रोकता है, हम उनको कबूल कर कर क्षमा पाकर हमारे इस जीवते परमेश्वर के पास, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, स्वर्ग और आकाश का निर्माण करता है, अपने दाहिने हाथ के भुजबल से जिसने आपको और मुझको छुड़ाया है और सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला ईश्वर, उसके पास हम प्रार्थना पूर्वक आएंगे। तो दया कर पहला 2 भाई 2 बहन हम लोग सेवकाई के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में कई सेवकाई के विषय है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी 2 भाई 2 बहन प्रार्थना करेंगे, केवल मिनिस्ट्री के लिए आप प्रार्थना करिए। 22 से लेके 24 तक जो जवानों की सभा है, जवानों की सभा जो नाला सुपारा में होने वाला है, उसके लिए आप विशेष करके प्रार्थना करिए कि प्रभु अपने दासों को अभिषिक्त कर कर कलवरी क्रूस के आड़ में छिपाकर उनको इस्तेमाल करे। बाय स्टैनली नेल्सन, बाय इमैनुअल, बाय फिलिमन और बाय डैनी बेंगलुरु से आने वाले हैं। चारों जवानों के बीच में सेवकाई करने वाले हैं, तो प्रभु उनको अभिषिक्त करें। इफिसियों की पत्री 3:11 के अनुसार द इटर्नल, परमेश्वर के सनातन के संकल्प, इस शीर्षक से प्रभु जो है जवानों के साथ मुलाकात करें। और नाम लेकर हमारे जवान जो पालघर और बोरीवली से जाने वाले हैं, उनके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हो। और मुंबई से भी करीब 150 से 200 के बीच में जवान भाई और बहन आने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक वेदर के विषय में, खाने पीने के विषय में, रहन सहन के विषय में, वचन की सेवकाई विषय में, इलेक्ट्रिसिटी, सब बातों में प्रभु सहायता करे। वॉचन बोर्ड में आने जाने में, सब बातों में प्रभु अनुग्रह दिखाए, उसके लिए विशेष प्रार्थना करिएगा। वैसे ही 24 तारीख को, 24 को 50 years ऑफ गॉड्स फेथफुलनेस, परमेश्वर की विश्वास योग्यता 50 वर्ष से चेंबूर में रही है। और हाल ही के दिनों में बहुत कठिन परिस्थिति में से चेंबूर की मंडली भी गई है। जैसे भाई प्रकाश भी महिमा में चले गए थे, उससे पहले भाई एडविन अंकल भी चले गए थे। ऐसा काफी नीड थी, फिर भी प्रभु ने उनको खड़ा किया, संभाला। आज भी सेवकाई चला रहा है प्रभु अपने नाम की महिमा के लिए। तो वहां पे जिम्मेदारी निभाने वाले भाइयों के लिए प्रार्थना करिए। जवान लोग हैं जैसे डेविड रूबेन है और उसके साथ कई और अन्य फैमिलीज है, उनके लिए प्रभु से ग्रेस मांगी है, अनुग्रह मांगी है, ताकि वो सेवकाई जो है बने रहे और फलदायी बने और वहां के परिवारों को प्रभु बल दे, आने वाले दिनों में और भी महिमित रीति से इस्तेमाल करें। विशेष करके चेंबूर के लिए प्रार्थना करिए और वहां की सेवकाई के लिए। तीसरा, जेहोवा शमा, ये उर्दू चर्च जो है हैदराबाद से डॉक्टर श्रीधर आकर 24 को YMCA में मुस्लिम्स के बीच में की मिनिस्ट्री के बारे में एक 1 डे वर्कशॉप कर रहे हैं। प्रभु करे कि बहुतायत के लोग वहां पर आए, लाभ पाएं, वहां की सेवकाई को भी प्रभु आशीषित करें। ये तीनों सेवकाई के साथ साथ हमारे जो सेवकाई है, जैसे कल आराधना का सभा पालघर में होगा, फिर बोरीवली में संडे मिनिस्ट्री होगी, फिर सैटरडे को मॉर्निंग हमारा प्रेयर होगा। इनको भी आप याद रखिएगा। प्रभु की नाम की महिमा के लिए सेवकाई हो और अगुवाई करे प्रभु इन सारी बातों में।
प्रभु अपने नाम की महिमा के निमित्त सारी सेवकाएं और एक बात भी इसमें जोड़िएगा मिनिस्ट्री के साथ साथ में, इजराइल में जो परिस्थिति चल रही है प्रभु उसमें भी अनुग्रह दिखाएं, इसके लिए भी प्रार्थना करिए। रिक्वेस्ट करता हूं इतने ही बातों के लिए, जो बीमार अस्वस्थ है उनके लिए ये 2 भाई 2 बहन प्रार्थना करने के बाद आई वुड रिक्वेस्ट मारी टू टेक ओवर एंड अनाउंस, जो बीमार है अस्वस्थ है और बाकी जो लिस्ट है वो बताएंगे। उसके बाद एक भाई एक बहन इस तरीके से हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले 2 ब्रदर्स 2 सिस्टर्स, मिनिस्ट्री और इजराइल, इनके लिए बात प्रार्थना करिए।